So, guys, we will be waiting for another 2 minutes and then we will start. Okay. Okay. So, guys, I am audible to everyone, right? Please type yes. Okay, cool. Yeah. So, good evening, everyone. First of all, a warm welcome to all of you in this intro session of Android Study Jam. So, I am Akhtar Raza Khan from third year CSC and one of the core team member of DSC VSS UT. So, just a little housekeeping before we get started. So, please mute yourself throughout the whole session. And if you have any questions during the presentation, then please type them in the chat box. I will bring them up at the end of the AMA session. Okay. So, guys, tell me how many of you have done Android app development before enrolling into this study jam? You can write in the chat box. कितने लोगों ने ऐप डेवलपमेंट किया है इससे पहले? You can write in the chat box. Please make it interactive. Nice to sir. और किसी ने? Okay, so how many of you have done Android app development in Kotlin programming language? कितने लोगों ने पहले Kotlin में काम किया है? अगर किसी ने जावा में भी किया है तो वो भी लिख सकते हो तुम चैट बॉक्स में. ओके. श्रेया ने जावा में ऐप डेवलपमेंट किया है. त्रिलोचन हैज आल्सो डन सम ऐप डेवलपमेंट स्टफ्स. ओके, नाइस. ओके. सो let's move forward. So here is our today's agenda. So first of all, we will be going to know more about Android Study Jam, and then I will tell you why we have chosen Kotlin as a programming language for development of apps, and why you should participate in this Android Study Jam. And then I will explain you what students have to do, and then I will explain both the tracks, and I will take you to the developer's profile and badges, and then finally I will tell you about the system requirements for this whole Android Study Jam, and then we will take up your questions, right? Okay. So let's move forward. So what are Android study jams? So first of all, Android study jams are community organized study groups for people who wants to learn how to build Android apps. So basically, it's a peer-to-peer learning environment. If you come across any doubts और तुम्हें कोई भी doubts हो रहा है या कहीं पर तुम फंस रहे हो, then we all are there to resolve your errors. Okay. So whenever any doubt comes, then you can ping us in the WhatsApp groups as well that we have made for Android Study Jam. Okay. So why we have chosen Kotlin as a programming language? बहुत लोग ये बोल रहे थे कि भैया जावा में क्यों नहीं एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट करा रहे हो, वाई कॉटलिन? So let me tell you, Kotlin is a newly created language that is inspired by Java, but it is an improved version of it with so many additional features. It is clean, it is relatively simple, and carries fewer formalities and rules as compared to Java and other programming languages. So Android app development में ये क्या काम कर रहा है? So the first feature is that uh, Kotlin concises our code. That is, it drastically reduces the amount of boilerplate code. क्या मतलब है इसका? मतलब if you have written any chunk of code in Kotlin, so it is much small as compared to Java. So it replaces the maximum number of coding with lesser code. So जितना कम कोड लिखोगे उतना कम bugs आएंगे. So वही इसका सबसे बड़ा फायदा है. And the next feature is it is safe. What does it mean? It is safe against null pointer exceptions. What do you mean by null pointer exceptions? Null pointer exceptions are those exceptions which are thrown at the time of runtime. Okay. So अब null pointer exception का मतलब समझो. अगर सपोज जो कि तुम अब देख रहे हो यहाँ पर स्क्रीन में, अगर एक आउटपुट वेरिएबल मैं सपोज डिक्लेयर कर रहा हूँ एंड दैट इज ऑफ स्ट्रिंग टाइप. ठीक है, अगर वो एक वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का है, अगर उसमें अगर मैं नल असाइन करता हूँ, देन इट विल थ्रो अ कंपाइलेशन एरर.
बट कॉटलिन हमें एक और मेथड प्रोवाइड करता है जो कि ये होता है, अगर एक वेरिएबल को हम स्ट्रिंग टाइप में डिक्लेयर कर रहे हैं बट इट इज ऑफ नलेबल स्ट्रिंग टाइप, एक नलेबल स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल अगर डिक्लेयर करते हैं हम लोग, तो हम लोग उसमें असाइन कर सकते हैं नल वैल्यू, दो बोथ द केसेस विल प्रिंट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज कंपाइलेशन एरर। बट हम एक नल वेरिएबल असाइन कर सकते हैं एक नलेबल स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल में, and that is what it avoids the entire classes of errors such as null pointer exception। ठीक है, तो अब डेवलपर्स को क्या हेल्प होगा? डेवलपर्स को ये हेल्प होगा कि जब भी अगर नल पॉइंटर एक्सेप्शन जो पहले जावा में आता था, दैट कॉजेज एप्लीकेशन फेलियर एंड ऑल्सो सिस्टम क्रैशेस, बट ये चीज कॉटलिन अवॉइड करता है। और इसी को एक बिग इसको हम लोग और भी बोल सकते हैं कि एक बिलियन डॉलर मिस्टेक था जो कि जावा करता था, और कॉटलिन वो चीज को रिमूव करता है। And the next thing is it is interoperable with Java. What does it mean? It compiles the code to a bytecode which can be executed in the Java virtual machine. ठीक है? So all the libraries and frameworks which are made in Java can be moved and also run in a Kotlin project. And next thing क्या है? It incorporates coroutines as well as interoperability with JavaScript for web development. ठीक है, तो तुम जो जावा कोड जहाँ जावा वर्चुअल मशीन में तुम रन करते हो, वो चीज तुम कॉटलिन के हर प्रोजेक्ट को भी वहां पर रन कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट फीचर इज दैट इट इज टूल फ्रेंडली। जावा के जो जो आईडी है, कोई भी आईडी जो जावा के प्रोग्राम्स को रन करता है वो कॉटलिन के प्रोग्राम को भी रन करेगा। सो दीज आर द फोर फीचर्स विच विच इज कोटलिन इज, ये जो चार फीचर्स है कोटलिन प्रोवाइड करता है हमें। एंड द नेक्स्ट थिंग इज uh, why you should participate in this Android study jam. ठीक है, so first of all, after completing each of the tracks, you will earn virtual badges on your Google developers profile. Okay, so which you can showcase on the LinkedIn as well. The next thing is, after completion of all the programming tracks, you will get a certificate of completion. So you will become an authenticated Android developer by completing this whole course. And then the most important thing, you will get a chance to showcase your app on the official Google platform. And another most interesting thing is that uh, at the end of the term of this DSE, जब ये DSE VSSUT एक साल के लिए होता है, फिर वापस से हमें एक परमिशन लाना पड़ता है। तो जब भी इस टर्म का एंड होगा तो एक गूगल सॉल्यूशन चैलेंज होगा सारे DSEs के बीच में। सो वहाँ पर हम लोग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। So in order to solve those real world problems, so you have to gain some skills like you have done 30 days of Google Cloud program. So वहाँ पर तुमने Google Cloud platform को अच्छे से acquainted हो गए थे। अब तुम ये Android study जब complete करोगे, then you will become an Android developer. So you can use those skills to solve some real world challenges. And in order to contribute in Google Solution Challenge, you have to complete this whole course. Okay. And now the next thing is what students have to do. ठीक है, इफ यू आर एन एब्सोल्यूट बिगिनर, अगर तुम बिल्कुल भी कॉटलिन तुम्हें आता नहीं है एंड यू डोंट नो हाउ टू डेवलप एंड्रॉयड एप्स, देन you have to pick a new to programming track. Okay, so there are two tracks. First track is new to programming track and the second track is prior programming experience track। ठीक है, अगर तुम एक एब्सोल्यूट बिगिनर हो, you have to complete both those tracks। अगर तुम्हें थोड़ा सा आता है एंड्रॉयड डेवलपमेंट और तुम्हें कोटलिन भी थोड़ा सा बेसिक्स आता है, देन यू कैन गो फॉर प्रायर प्रोग्रामिंग ट्रैक। बट कंडीशन ये है कि तुम्हें जो सेकंड ट्रैक है, दैट इज प्रायर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस ट्रैक, वो तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट अ सर्टिफिकेट। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू कंप्लीट ऑल द pathways of that track and proceed to another track. And after completing each unit of a particular track, you will earn digital badges and which will be directly reflected on your Google developers profile. Okay, and the next thing is सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? सबके दिमाग में यही चल रहा होगा कि भैया सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। तो सर्टिफिकेट ऐसे मिलेगा कि आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स you have to submit the course completion form. So you will receive that I think towards the program deadline or after the deadline. So you will need to submit the following details like first of all, you have to give a screenshot of your Google developers profile, which will be showing all your badges which you have earned by completing all the tracks. And the next thing is either if you want to
deploy your app in the Play Store, then you can upload your app in the Play Store, or you have to give a screenshot of your app, and also you have to give the APK file of your app. Okay, so इतना सब कुछ करने के बाद then you will be eligible for a certificate. एंड देन वेयर टू स्टार्ट. ओके, सो जैसे कि मैं बता रहा था, दो प्रोग्रामिंग ट्रैक है. ठीक है, एक है न्यू टू प्रोग्रामिंग ट्रैक है, दूसरा है हैव प्रायर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस. अगर एब्सोल्यूट बिगनर्स हो तो न्यू टू प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करो, और वहाँ पर दैट यू हैव टू कंप्लीट दैट ट्रैक. देन आफ्टर दैट यू हैव टू गो फॉर द प्रायर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस. मैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में भी अभी लेके जाऊँगा, तो ज़्यादा क्लियर लगेगा. ठीक है, सो न्यू टू प्रोग्रामिंग ट्रैक में क्या है? So in new to programming track, you will learn the basics of building Android apps with the Kotlin programming language. Okay, so you will develop a simple collection, simple apps to start your journey. So कोई prerequisites नहीं है इसमें, totally beginners के लिए. So the first unit in the new to programming track is introduction to Kotlin, where you will learn to code in Kotlin, and then you will create your first Android app in Android Studio. ओके, सो एंड्रॉयड स्टूडियो भी डाउनलोड कहाँ से करोगे, उसका सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन. ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज यू विल बी बिल्डिंग अ बेसिक लेआउट. You will learn the basics of layouts on Android by creating your own birthday card app. Okay, this is the first step that you will be going to develop in the first track. Okay, and then you will learn how to use classes, objects and conditionals. Just like तो अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉटलिन में तुम सीखोगे, एंड देन यू विल क्रिएट एन इंटरैक्टिव डाइस रोलर ऐप, और वहां पर तुम सीखोगे हाउ टू ऐड अ बटन टू एन ऐप. ओके, and the next unit of this track is user input. You will learn how to get user input within an app by building a tip calculator app. तो गिनते जाओ कितने सारे ऐप्स तुम बनाते जाओगे. सो इट विल बी प्योरली हैंड्स ऑन कोर्स. ओके, सो यहाँ पर कोई थ्योरी नहीं है. एंड द नेक्स्ट थिंग इज you will learn how to display a list of text and images in an app. Okay, so you will I think you will develop on another app, like scrollable app. Okay, now we will move towards prior programming experience track. Okay, so in the first track you learn the essentials of the Kotlin programming language, and you learn the fundamentals of Android app development. Okay, and now in this prior programming experience track there are two things. The first thing is Kotlin Quants, and the second thing is Android Kotlin fundamentals. ठीक है, तो दो चीजें हैं. पहला था Kotlin Quants. तो what is Kotlin Quants? So Kotlin Quants is a series of exercises which will make you familiar with the Kotlin syntax and some idioms. So this exercise contains Kotlin conventions, generics, collections and builders. So purely तुम Kotlin प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर तुम पूरा डाइव करोगे. ठीक है, बिट बाय बिट एक एक चीज सीखोगे पूरा. कोर जैसे लाइक कोर जावा तुम जाते हो, वैसे कोर Kotlin में तुम घुसोगे अंदर. ठीक है, so why Kotlin Coins? So it is one of the most popular and most effective ways to get into Kotlin. Here each unit is framed like a failing unit. Okay, so थोड़ा सा टफ लगेगा, बट तुमको उसको करना है और तुम्हें उसको पास भी करना है, तभी जाके तुम्हें कोटलिन मिलेगा, कोटलिन का सर्टिफिकेट मिलेगा. ओके, अब जो नेक्स्ट यूनिट है, उसका नेक्स्ट यूनिट में सबसे पहले तो तुम्हें तुम्हारा प्री वर्क यही होना चाहिए कि तुम कोटलिन कौन एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे प्रायर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस ट्रैक का. और उसके जो नेक्स्ट यूनिट के अंदर में उसके सब यूनिट्स हैं. सबसे पहले यू विल बी बिल्डिंग योर फर्स्ट ऐप. यू विल इंस्टॉल एंड सेटअप एंड्रॉइड स्टूडियो. सो यू बिल्ड योर फर्स्ट हेलो वर्ल्ड एंड्रॉइड ऐप इन कोटलिन. ओके, and then you will be building then you will be building an interactive app. That is, you will learn the basic anatomy of an Android app project, and you will learn how to add images to your app by using image view, and how to enable backward compatibility of an app while creating a dice roller app. और ये dice roller app का basic layout you have created in the first track. Okay, अभी मैंने डिस्कस जो किया था. ठीक है, next thing you will learn about layouts. You will create different types of layouts, and you will add user interactivity, and you will also use data binding while creating two apps. Kotlin और जावा का सबसे बड़ा बेसिक यही है कि इसमें व्यू बाइंडिंग डेटा बाइंडिंग का कुछ डिफरेंसेस होता है. अगर किसी ने पहले भी अगर जावा में ऐप डेवलपमेंट किया, तो तुम जब बाइंड करते हो अपने XML और अपने मेन एक्टिविटी में
मेन एक्टिविटी फाइल में, तो वहां पर तुम फाइंड व्यू बाय आईडी यूज करते हो, लेकिन बट कॉटलिन में यहाँ पर व्यू बाइंडिंग होता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यू विल लर्न हाउ मल्टी स्क्रीन नेविगेशन वर्क्स। तुम मल्टी स्क्रीन एप्स बनाओगे कि एक स्क्रीन से दूसरे दूसरे स्क्रीन में तुम कैसे मूव करते हो, और वो कैसे करोगे, यू विल यूज फ्रेगमेंट्स, you will define navigation paths, and you will start an external activity through developing a trivia app. ठीक है, this is a third app you will be developing in this course. Okay, and the next thing you will learn is that you will learn about activity and fragment life cycles, and you will handle complex life cycle situations, and you will use logging to help debug and track the state of the app by creating the desert clicker app that will preserve its state on rotation. So this is the fourth app. Okay, and then you will learn about Android architecture components. Here you will learn about view model, live data, data binding with view model, and live data transformations by completing a charades game app. Okay, live data क्या होता है? जब तुम गूगल मैप्स यूज करते हो, वो तुम्हारा लाइव डेटा देता है। जब तुम जोमेटो में फूड डिलीवरी करते हो, तुम कंटिन्यू चेक करते रहते हो कि मेरा डिलीवरी बॉय कहाँ तक पहुंचा, तो दैट इज कॉल्ड लाइव डेटा। ओके, एंड देन यू विल लर्न समथिंग अबाउट डेटाबेसेस। अब बैकएंड पे आते हैं। यू विल क्रिएट अ डेटाबेस यूजिंग द रूम लाइब्रेरी, you will use core routines to simplify asynchronous programming, and you will display a list with recycler view in the track my sleep app, and this is the fifth app. Okay, and then you will learn how to get images and data from the internet, and you will display them in the app by developing a March real estate app. This is the sixth app. Okay, तो टिल नाउ अभी तक अगर तुम बीट बाय बीट अगर फॉलो करते जा रहे हो अगर इस कोर्स को, देन इस टाइम में तुम अभी तक सिक्स स्टेप में रहोगे अपने। ओके, एंड देन यू विल क्रिएट अ रिपोजिटरी, एंड यू विल ऐड एन ऑफलाइन कैश एंड अ शेड्यूल background tasks with work manager by completing an app called devbytes, and you will be handling background processes with best practices. Okay, and the last one is that you will learn the basics of Android styling system, how to apply material design principles to the UI of your app, and how to make your app more accessible for all users by creating a Google Developer Groups Finder app. ठीक है, so एक के बाद एक तुम कंटिन्यू तुम एडवांस में चलते रहोगे और तुम एप्स बनाते रहोगे। जितने भी एप्स बनाए हो उसमें से एक ऐप तुम्हें सबमिट करना पड़ेगा डीएससी वीएसएसयूटी को। और जिस स्टूडेंट का बेस्ट ऐप रहेगा एंड तो वो शोकेस होगा गूगल डेवलपर्स के प्लेटफॉर्म में। ओके, ठीक है, सो मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। स्क्रीन विजिबल है ना? ठीक है, तो तुम चैट बॉक्स में मिल गया होगा लिंक। तो दो ट्रैक्स हैं, न्यू टू प्रोग्रामिंग, प्रायर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, न्यू प्रोग्रामिंग यहाँ पर बेसिक्स रहेगा, प्रायर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस में कॉटलिन क्वंस का एक एक्सरसाइज रहेगा, इसको पहले कंप्लीट करना, देन उसके बाद कोर्स को स्टार्ट करना। जैसे न्यू टू प्रोग्रामिंग के अंदर गए तुम, तो दो यूनिट्स हैं, कॉटलिन बेसिक्स फॉर एंड्रॉयड, यूनिट टू इज लेआउट। तो कॉटलिन बेसिक्स फॉर एंड्रॉयड है, क्लिक करो, एक्सप्लोर करो उसमें, देन फर्दर अंदर जाओ। तो हर एक यूनिट्स में तुम्हें कोड लैब्स मिलेगा, तो तुम्हें वो कोड लैब को लेना है। कोड लैब के अंदर में तुम जाओगे, वहां पर एक ऑनलाइन आईडी मिलेगा कॉटलिन का, दैट इज कॉल्ड कॉटलिन प्लेग्राउंड। वहां पर तुम अपने कॉटलिन के प्रोग्राम्स को रन कर सकते हो। तो चलो फर्स्ट प्रोग्राम रन करते हैं, लाइक फंक्शन मेन प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड, सो इट विल प्रिंट हेलो वर्ल्ड। सो दिस इज द रन बटन, क्लिक हियर, और नीचे तुम्हारा आउटपुट मिल गया तुम्हें। सो तुम ऑनलाइन आईडी यूज कर सकते हो कॉटलिन के बेसिक्स फंक्शंस यूज करने के लिए। ठीक है, सो कॉटलिन प्लेग्राउंड यूज करना आ गया तुमको, एंड देन तुम फर्दर आगे बढ़ते जाओगे उसी उसी के हिसाब से। और हर एक एक प्रोग्रामिंग ट्रैक कंप्लीट करने के बाद तुम्हें एक एक बैजेस मिलेंगे। तो आफ्टर कंप्लीटिंग होल स्टडी जैम, यू विल गेट ऑल द बैजेस।
तो टोटल बैजेस कितने हैं गिन लो, इतने बैजेस होने चाहिए एक स्क्रीनशॉट में तुम्हारे, तो तभी तुम सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल रहोगे। एंड नाउ सिस्टम रिक्वायरमेंट। So for Windows, this is only for Windows, okay? तो तुम्हें हम दे देंगे एंड्रॉयड स्टूडियो का लिंक दे देंगे, जहाँ से तुम्हें डाउनलोड करना है, ओके? सो ये तुम्हारा जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है, अगर तुम विंडोज़ यूज़र हो देन मिनिमम तुम्हें 4 GB रैम की ज़रूरत पड़ेगी, और 8 GB रैम इज़ रिकमेंडेड। सो जो भी बच्चे 4 GB रैम वाले पीसी को यूज़ कर रहे हो, सो एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करो, बट एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर में एमुलेटर को डाउनलोड मत करना, ठीक है? इट विल टेक मोर स्पेस, सो कंप्यूटर स्लो हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? नेक्स्ट थिंग इज 2 GB ऑफ अवेलेबल डिस्क स्पेस, मिनिमम 4 GB रिकमेंडेड, ओके? 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए विथ एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल्ड। And another thing is you need an Android device, that is a mobile phone and a USB cable, so that you can run your app on your Android device. Okay, so before running your app in the Android device, you have to turn on the developer options as well as USB debugging, ठीक है? तो जब तुम न्यू टू प्रोग्रामिंग ट्रैक में स्टार्ट करोगे अपना एंड्रॉइड स्टूडियो का जर्नी, तो वहाँ पर बताया होगा स्टेप्स कि तुम्हें यूएसबी डिबगिंग कैसे ऑन करना है एंड हाउ टू टर्न ऑन योर डेवलपर ऑप्शंस, ठीक है? तो दिस इज व्हाट अब तक का सिस्टम रिक्वायरमेंट्स था। एंड नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द गूगल डेवलपर्स प्रोफाइल, हाउ योर गूगल डेवलपर्स प्रोफाइल विल लुक लाइक, ओके? सो दिस इज माय गूगल डेवलपर्स प्रोफाइल। तो तुम्हारा भी एक गूगल डेवलपर्स प्रोफाइल मिलेगा। तो ये टोटली तुम्हारा एक स्क्रीनशॉट होना चाहिए। तुम्हारा जो स्क्रीनशॉट होगा जब फाइनल कोर्स कंप्लीशन फॉर्म में, वहाँ पर तुम्हारा नेम, देन योर कॉलेज नेम एंड हियर योर बैजेस, ये सब बैजेस दिखने चाहिए, ठीक है? ओके, सो we will go ahead and take some time for questions, okay? So you can ask your doubts in the chat box. एंड वन मोर थिंग, अगर तुम्हारे कोई फ्रेंड्स भी इंटरेस्टेड है, सो अगर तुम्हें सर्टिफिकेट चाहिए देन यू मस्ट हैव टू सबमिट द एनरोलमेंट फॉर्म एज वेल। सो तो जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो फॉर्म आया है उसको ट्रांसफ़र करो अपने फ्रेंड्स को, सो दैट वो उस एनरोलमेंट फॉर्म को सबमिट करे। उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद ही तुम एक ऑथेंटिकेटेड एंड्रॉयड स्टडी जैम पार्टिसिपेंट रहोगे, ठीक है? ओके, अंकुश ने पूछा है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डाइस रोलर इन ट्रैक 1 एंड ट्रैक 2। ओके, सो अंकुश, ट्रैक 1 में जो डाइस रोलर ऐप बना रहे हो वो बेसिकली बस लेआउट्स के यूज करके तुम डाइस रोलर ऐप बना रहे हो। बट तुम जब सेकंड ट्रैक में जाओगे, वहाँ पर डाइस रोलर ऐप जो बना रहे हो तुम, वहाँ पर इमेजेस भी ऐड करोगे, और यू विल लर्न हाउ टू एनेबल बैकवर्ड compatibility ऑफ एन ऐप while creating a dice roller ऐप। सो उसमें कुछ इंटरैक्टिव ऐप बनाओगे तुम उसमें, ठीक है? तो एनी मोर डाउट्स? एंड वन मोर थिंग गाइस, हम लोग फर्दर डेमो सेशंस और भी रखने वाले हैं इस एंड्रॉयड स्टडी जैम का। सो वो डेट कौन सा होगा और कब होगा वो तुम व्हाट्सएप ग्रुप में बता देना। जो भी तुम्हारे डाउट्स या क्वेरीज रहेंगे हम लोग वहाँ पर रिजॉल्व करेंगे ऑनलाइन, ऐसे मीट में। सो अगर कोई क्वेरीज हैं तो पूछ सकते हो। अ, अगर कोई डाउट नहीं है देन वी कैन एंड द मीटिंग एज वेल। सो जल्दी से पूछ लो, इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांटेड टू कवर बिफोर आई रैप अप? ओके, व्हाट इज द डेडलाइन? डेडलाइन, डेडलाइन जनवरी में उसका डेडलाइन है, 25 जनवरी इज द डेडलाइन।
डेट भी अभी अनसर्टन है, 25 जनवरी इज द डेडलाइन और नॉट, ये भी कंफर्म नहीं है, बट जनवरी इज द एंड। ओके, सो आई थिंक मिड जनवरी तक तुम कंप्लीट कर लो इसको। सो शुड वी वाइंड अप? ओके, so I think we are good for now. So thank you everyone. It was a pleasure being with you today. So thank you for joining us today. Okay. So we अब will तो see you in the क्वेश्चंस आए हैं चैट बॉक्स में। oh wait. एक मिनट, हाँ। तुषार ने पूछा, भैया इट इज रिटन दैट मोर यूनिट्स विल कम इन द ट्रैक एंड हाउ मेनी यूनिट्स विल बी देयर इन टोटल। सो तुषार, हाँ अभी वो ट्रैक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। वो लोग कंटिन्यू कुछ कुछ चेंजेस करते रहेंगे। सो टिल देन तुम अपना तुम कंटिन्यू करो तुम लर्निंग। अगर कुछ चेंजेस होगा तो देन आवर डीएससी लीड विल नोटिफाई यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भैया व्हाट इज द इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कॉटलिन? ओके, सो आशीष, मैंने जैसे पूछा था, मैंने बताया था स्टार्ट में कि हेयर उसका 4 फीचर्स। कॉटलिन तुम्हारे बॉयलर प्लेट कोड को रिड्यूस कर देता है, उसके अमाउंट को। एंड द नेक्स्ट थिंग इज नल पॉइंटर एक्सेप्शन से बचाता है वो हमें। मैंने एक्सप्लेन किया था उस चीज़ को। एंड अनदर थिंग इज इट इज इंटरऑपरेबल विद जावा। किसी भी आईडी में जिस आईडी में तुम्हारा जावा रन करेगा, जो लाइब्रेरीज जो जेवीएम तुम्हारा बाइट कोड में कन्वर्ट करता है तुम्हारे कोड को, वो कॉटलिन में भी वही चीज़ करेगा। तो वो उसका एक बहुत बड़ा फीचर है। तो इसीलिए इसी वजह से कॉटलिन टूल फ्रेंडली भी होता है। आई होप इट इज क्लियर। Okay, Devanshu has asked, Bhaiya, to earn a badge, is it compulsory to watch all the videos or just attempting the code labs are enough? देवांशु, वीडियोस के लिए कोई बैजेस नहीं मिल रहे हैं। वीडियोस अगर देख लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। सो तुम ज़्यादा मतलब उसके बारे में जान पाओगे। और वीडियो ज़्यादा नहीं है, बेसिकली तुम्हें कोड लैब्स ही करना है। पढ़ पढ़ के कोड लैब्स करना है। सो कोड लैब्स करने के ही तुम्हें बैजेस मिल रहे हैं, वीडियोस के बैजेस नहीं मिलेंगे। सो यू कैन स्किप वीडियोस। एनी मोर क्वेश्चंस? सुभाषिस ने पूछा है, भैया कॉटलिन कॉन्स सेकंड ट्रैक के पहले कंप्लीट करना है क्या? यस, कॉटलिन कॉन्स जो है वो जो एक्सरसाइज है वो टोटली एडवांस कॉटलिन में तुम्हें डाइव करवाता है। सो यू हैव टू कंप्लीट दैट फर्स्ट बिफोर गोइंग टू द सेकंड यूनिट ऑफ द सेकंड ट्रैक। ओके, कॉटलिन कॉन्स मैंडेटरी है सबके लिए, चाहे तुम्हें कॉटलिन आता हो या ना हो, यू हैव टू कंप्लीट दैट एक्सरसाइज। और उसमें बहुत सारे डाउट्स भी आएंगे तुम लोगों को। सो उसके लिए हम सेशन भी रखेंगे फर्दर। Ashish has asked, which is more preferable in corporate sector, Kotlin और Flutter? फिलहाल के लिए तो अभी अगर तुम फ्लटर डेवलपमेंट कर रहे हो देन ज़्यादा बेटर तो फ्लटर ही होगा, बिकॉज वो iOS पे भी काम करता है। और अभी के टाइम में जावा ऐप डेवलपमेंट थोड़ा सा आउटडेटेड होते जा रहा है। सो कॉटलिन पे अगर स्विच करोगे तो बेटर होगा, और जिनको जावा में आता है उनको कॉटलिन में स्विच करना बड़ा इजी होता है। सो आशीष, अगर फ्लटर डेवलपमेंट आता है तो ज़्यादा प्रिफरेबल होता है, बिकॉज iOS डिवाइसेस पे भी वो चल जाएगा। एनी मोर डाउट्स? शुड वी एंड द मीटिंग, बिकॉज नो मोर डाउट्स आर देयर? Okay, so I think there are no doubts from your side. So we are ending this session. So guys, thank you for joining us, and we will see you in the next demo session. Okay. So till then, सारे exercises complete करो,
अगर कहीं डाउट आता है देन वी विल कंडक्ट ऑन अनदर सेशन जहाँ पर हम हैंड्स ऑन करेंगे. ओके, सो थैंक यू गाइस.